ہمارے لیے جو پہلی تلاوت ہے وہ پیدائش کی کتاب میں سے، پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کا اصول ہے، اور آج یہ شکر گزاری کا موقع ہے کہ ہم تاریخ نکاح مقرر کرنے جا رہے ہیں۔ اور عزیزو، یہ بہت ہی مبارک اور شکر گزاری کا موقع ہوتا ہے کہ خدا نے جو قانون ایک ٹھہرایا کہ مرد و خواتین آپس میں شادیاں کریں اور دنیا جنریشن آگے بڑھے، اور ایک ہی خدا نے شادی کا اصول ٹھہرایا، اس لیے کہ دنیا میں خدا ترس قوم پیدا ہو۔ زبور نمبر 127 میں لکھا ہے، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ اور ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے، ہر ایک چیز کی ایک ٹائمنگ ہے کہ کب خدا نے وہ کام ہمارے لیے کرنا ہے۔ دنیا میں ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زمین پر گھر بنائے یا وہ شادی کے بندھن میں بھی بندھے۔ تقریباً ہر ایک شخص کی یہ ضرورت ہے، ہر بیٹی کی، بیٹے کی، بہن بھائی کی یہ ضرورت ہے کہ اس کی شادی بھی ہو اور اس کو رہنے کے لیے ایک گھر، ایک ٹھکانہ بھی ملے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند ہی ایسا ممکن کرتا ہے۔ اگر خداوند ایسا ممکن نہ کرے تو محنت ہے وہ بیکار ہے، محنت انسان کی ابس قرار دے دی جاتی ہے۔ وائز کی کتاب میں خدا کے بندہ نے فرمایا، 3 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ہر چیز کو اس وقت میں خوب بنایا۔ اور خدا کا جو وقت ہے ٹھہرایا ہوا، وہ ایک پرفیکٹ وقت ہوتا ہے۔ انسان اپنے تائیں بڑی کوشش کرتا ہے ہر طور سے، ہر ایک کام میں، چاہے وہ شادی کا ہو، چاہے وہ گھر بنانے کا ہو، جابز کا ہو، تعلیمی سطح پہ آگے بڑھنا کا ہو، کاروباری سطح پہ آگے بڑھنے کا ہو۔ کتنی کوشش ہر انسان زندگی کے ہر ایک موڑ پر، ہر ایک سٹیپ پر کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو وقت ہے ٹھہرایا ہوا، وہ اتنا شاید اہم نہیں ہے جتنا خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت ہمارے لیے اہم ہوتا ہے۔ The God's timing is a perfect timing۔ جب وہ کام کرتا ہے تو پھر بہترین کام ہوتے ہیں۔ مقدس یسایہ نبی بیان کرتے ہیں 60واں باب اس کی 22ویں آیت میں خداوند آئین وقت پر یہ سب کچھ کروں گا، جلد کروں گا اور آئین وقت پر کروں گا۔ اس لیے ہمیں خدا کے وعدوں پر اور اس کے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پوری امید ہے، بھروسہ ہے۔ اگر آپ تاریخ بائبل کا مطالعہ کریں، بائبل مقدس میں آپ کو ہر ایک چیز کا ایک وقت نظر آئے گا۔ پہلے دن کی تاریخ جو تخلیق ہوئی وہ بھی وقت، دوسرے دن کی تاریخ جو تخلیق ہوئی وہ بھی وقت۔ ہر ایک جگہ پہ خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت ہمیں نظر آئے گا۔ اگر آپ انسانوں کو دیکھیں، آدم کو دیکھیں، مقدس ابراہم کو دیکھیں، خدا نے ایک وقت میں چنا اور ایک وقت میں اقبال مند کیا اس کو۔ یوسف کو دیکھیں، اس کی ٹائمنگ کو دیکھیں کہ کس طرح سے اس کے بھائی اس کو فروخت کر رہے ہیں اور آگے کچھ لوگ اس کو لے کر پرچیز کر کے آگے جا رہے ہیں۔ یہ وقت ہے خدا کا، اور پھر خدا اس کو وہاں پہ مصر میں بہت بڑا ایک عہدہ بخشتا ہے۔ یہ ہے خدا کا وقت، خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت۔ تو ہمیں اس بات کے لیے خوشی ہے، شکر گزاری ہے کہ جو وقت خدا نے ٹھہرایا تھا اس کے لیے آج ہم شام کو یہاں پہ جمع ہیں۔ تاریخ میں اگر آپ اسرائیلیوں کو دیکھیں، ایک لمبی غلامی، ایک لمبا عرصہ وہ مصر میں رہے، اور پھر جب وقت تھا تو خدا ان کو اپنے زور بازو سے وہاں سے نکال کر لے آیا۔ کوشش وہ اپنے تئیں کرتے رہے ہوں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ جب خدا نے کچھ کرنا ہے تو خدا وہ کرتا ہے۔ تو پھر میں کئی دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آگے سمندر ہو، پیچھے فوجیں ہوں، حالات کئی دفعہ زندگی میں ہمیں اس طرح کے بھی نظر آتے ہیں، تکالیف، لیکن خدا اپنا اثر و رسوخ وہاں پہ دکھاتا ہے، اور خدا بتاتا ہے کہ میں نے جو وقت دیا ہے، میں نے جو مقرر کیا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور موسیٰ کہتا ہے کہ جن مصریوں کو آج تم دیکھتے ہو وہ گلہ کرنے لگے کہ تو ہمیں مرنے کے لیے لے آیا۔
मूसा कहता है आज के बाद फिर इनको कभी नहीं देखोगे, और वैसा ही हुआ। खुदा ने उन सबको गारत कर दिया, क्योंकि वो खुदा का वक्त था कि कौम को सरफराजी और सरबुलंदी और अगले स्टेप पर लेकर जाए। तो आज हम जमा हैं हमारे इन बच्चों के लिए, बहन रमीला के लिए और भाई जकरिया के लिए, कि हम इनको भी स्टेप एक फॉरवर्ड लेकर जाएं उस दिन को मुकर्रर करने के लिए। खुदा ताला की मर्जी से है और उसी की मर्जी से हम इसको डिसाइड करने जा रहे हैं। इसलिए जिस काम में खुदा ताला की मर्जी होती है, खुदाइन होता है, उस काम में हमेशा बरकत रहती है। इसीलिए खुदा के बंदा ने कहा, अगर खुदावंद ही घर न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। इंसान अपने ताई जितना मर्जी जोर लगा रहे, वो कुछ नहीं कर सकता अगर उसको खुदा बरकत ना दे दो। तो खुदा का शुक्र है कि वो हमारे दरमियान में है। एक पेशीन गोई थी कि खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। और जिंदगी भर खुदा अपने लोगों के साथ रहा। वही खुदा जो अब्राहम का खुदा, वो हमारा भी खुदा है। वही खुदा जो इसहाक का खुदा, वो हमारा भी खुदा है। एलिया जब यर्दन पार करके चला गया, आगे एलिया आग के भगोले में गायब हो गया, वापस एलीशा अकेला आया और एलिया ने यर्दन को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, जिस तरह से मूसा ने कुलजम को किया था। लेकिन जब उसका शागिर्द और दोस्त वापस आया तो उसके लिए यह बड़ा अजीब काम था। उसने दरिया के किनारे खड़े होकर बड़े ईमान के साथ एक बात की थी। उसने कहा था, एलिया का खुदा कहां है, क्या तू यहीं है? और फिर उसने चादर मारी तो एलिया ने खुदा ने बता दिया कि यस आई एम हियर, मैं यही हूं। जैसा मैंने एलिया के लिए किया, एलीशा मैंने तेरे लिए भी कर दिया। वही खुदा हमारा भी है और उस खुदा के ताल्लुक से लिखा है, वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। तो कीप रिमेंबर, द गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट। हर सिलसिले में, शादी के मामले में, औलाद के मामले में, बरकत के मामले में, कारोबार में तरक्की के मामले में, जिंदगी के हर एक मोड़ पर जो भी हमारी उलझन, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, गोल या कुछ भी हम खुदा से चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, कीप रिमेंबर द गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट। खुदा जो मुकर्रर करता है सबसे उत्तम और सबसे पाक है। तो खुदा इस दिन से ऑनवर्ड हमेशा रमीला को भी, जकरिया को भी और हम सबको भी बरकत अता फरमाए। थैंक यू सो मच। आइए दुआ में झुकें, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। ना सिर्फ हम इनके लिए दुआ करेंगे जो उम्मीदवार है शादी के लिए, आज जो तारीख मुकर्रर की जाएगी उसके लिए भी हम खुदा के हुजूर में झुकेंगे। और इसके साथ साथ आप में से जितनी भी गुजारिशात हैं, आपकी मुनाजात हैं, आपकी जरूरियात हैं, हर एक शख्स की अपनी जरूरत है, उसको भी हम खुदा के सामने रखेंगे। और इस बात को याद रखें कि खुदा का ठहराया हुआ वक्त हमारे लिए बड़ा कीमती है। वाइस कहता है, हर काम जो जमीन के ऊपर आसमान के नीचे होता है उसका एक वक्त है। हालेलुया। कादरे मुतलिक कुदूस खुदा, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी नेमतों और बरकतों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज जो हमारे अजीज यहां पे पहुंचे हैं, तेरे इस ठहराए हुए वक्त के मुताबिक हम इनको पूरे दिल से वेलकम करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम इन दोनों खानदानों के लिए खुदावंद यस्सु मसीह के कुदूस और कादरे मुतलिक नाम में बरकत और सेहत और सलामती की दुआ करते हैं। हम रमीला अंसर के लिए और जकरिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तूने ये मुमकिन किया कि जो अयाम तूने बनी नो इंसान की फलाह के लिए, तरक्की के लिए ठहराए हैं, हम आज उनके लिए यहाँ पे जमा हो सके, शुक्रगुजारी कर सके और दिनों को और बाकी बातों के ऊपर डिस्कशन करके उनको मुकर्रर कर सके। जितने अजीज आज शामिल हुए, इन सब के लिए तेरी शुक्रगुजारी हो। और खास तौर पर अमीला के लिए और जकरिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद यस्सु मसीह के कुदूस कादर मुतलिक नाम में हर तौर से अपने लोगों को बरकत और सलामती अता फरमा। दोनों खानदान के तमाम अजीजों कारब को बरकत अता फरमा। और ये घर जो कायम होगा, दुआ करते हैं खुदावंद यस्सु मसीह के पीछे चलने वाला, ईमान पर कायम रहने वाला और जिंदगी के हर एक मोड़ पर खुदावंद तेरे साथ वाबस्ता होने वाला हो। वो खुदा जो एलिया का खुदा है, उसी को हम अपने सारे कामों में दावत देते हैं।
वेलकम करते हैं। अजीज, जहां कहीं से भी आए हैं, हम दुआ करते हैं रसूमात के बाद बाखरियत वहां पे जाएं और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। यहाँ पे मौजूद हर एक शख्स की जो भी जरूरत है, खानदानी सतह पर, कारोबारी एतबार से, शख्सी एतबार से, रूहानी एतबार से, अखलाकी एतबार से, यहाँ पे मौजूद हर एक शख्स की मन्नत, समाजत और जरूरत हम दुआ करते हैं खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से पूरी हो जाए और तेरे लोगों की जिंदगी में गवाही पैदा हो और ये बताएं कि जैसे एलिया के खुदा ने बड़े बड़े काम किए, हमारा खुदा भी हमारे लिए जिंदा है, ला तब्दील है और बड़े बड़े काम कर सकता है। सब पर तेरी बरकत हो। हम सब एक दूसरे को खुदावंद तेरी पाक पनाह में लाते हैं और तेरे फजल के सुपुर्द करते हैं। तेरी रहमत और तेरा फजल सबके लिए जारी सारी हो जाए। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद और हमद हो। सब जो इंतजामात में हमारे मददगार रहे हैं उनके लिए तेरी बरकत हो। इस इलाके के तमाम मसीहियों के लिए तेरी बरकत हो और इसी तरह पाकिस्तान और आलमगीर सतह पर मसीहियों के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आइए खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है तो भी हमारे कर्ज में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफाकत और शराकत हम सबों के साथ और दुनिया भर के तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक रहे। आमीन। खुदा बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से। आमीन।